क्या फर्स्ट क्लास है आज आपकी? So last class में problem we are doing one problem set 3.1. One problem we were taking problem number 3. Set was given to you R plus set of all positive real numbers. And so 0 was not here. Operation was u plus v is equal to u dot v and alpha u is equal to u to the power alpha for all uv in R plus and alpha in R. So this was your vector addition and this was your scalar multiplication. So vector addition was in fact defined as a product of two vectors and scalar product was defined u to the power alpha. Problem 3 proved that R plus is a vector space, is a real vector space. ये एक problem थी, ये हम कर रहे थे. So we saw that this is closure property, u plus v is closure and alpha u alpha also belongs to R plus. So these operations defined, and then we saw that it has associativity. Yeah. Belongs to R plus and alpha u is equal to u alpha belongs to R plus. A vector space show karna hai. Then associativity was also there. Why? Product we can show, and then we got identity. Identity क्या आई थी इसकी? R1 आई थी ना? Yes, sir. Inverse की बात करते हैं. यहाँ तक we have done the last lecture. Now existence of inverse. So by the definition of inverse, what will happen? If u dash is the inverse, then u plus u dash should equal to u dash plus u should equal to how much? The identity. It should be equal to the identity. The identity यहाँ पर 1 है. Okay? ठीक है, 1 ही तो है आइडेंटिटी. और कल क्या आई थी आइडेंटिटी? u dot u plus e. This was how much? u dot e should equal to u. तो इससे हमारे पास e1 निकल के आया था. क्या ऑप्शन ये था? ठीक. अब u plus u dash again it is how much? u dash है ना? Because it is defined like this. Yes. This equal to 1. So u dash is equal to 1. Now u belongs to R plus. एलिमेंट तो आपका R plus में है ही, तो हमें शो करना है कि u dash जो आइडेंटिटी आ रही है वो भी R plus में होना चाहिए. There should exist one element which gives you 1. अब u dash, अब u अगर R plus में है, we know I can take the inverse. If u belongs to R plus, so u inverse भी R plus में होगा because u inverse is also a real positive number. So I can take u inverse here. Now I can multiply by u inverse on both sides. Or you can say, क्योंकि इसे हमें शिफ्ट करना है, तो I am multiplying by u inverse on both sides. We get how much? U inverse dot u dash is equal to u inverse dot 1. ये मल्टीप्लाई करें. अब ये u inverse dot u I can write
is equal to U inverse, and it is what, because U inverse is the inverse, it will One. be 1. देखो यहाँ पर इन्वर्स मैं क्यों कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे ये सेट मालूम है कि व्हाट इज द सेट. इफ यू नो सेट ऑफ रियल, अगर यहाँ पे सेट इसके कोई आर्बिट्री सेट एक्स दिया होता कि सपोज एक्स इज एनी सेट, तो उस केस में आई वाज नॉट हैविंग गारंटी कि यू इनवर्स बिलोंग्स करेगा आर प्लस में, है ना. मतलब यू इनवर्स यहाँ पे तो गारंटी है क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स आपको मालूम है क्या होता है ना. लेकिन अगर कोई आर्बिट्री सेट एक्स होता तो उसमें आई वाज नॉट हैविंग गारंटी कि यू इनवर्स होगा या नहीं होगा, तो उसमें मैं यू इनवर्स नहीं दे सकता था ऐसे, क्योंकि एक्स में पता नहीं एलिमेंट्स क्या हो सकता है यू इनवर्स ना हो, है ना. लेकिन अगर आपके पास कोई नोन स्ट्रक्चर है तो उसके एलिमेंट्स में पता होते हैं. तो अगर मुझे मालूम था कि अगर यू बिलोंग करेगा आर प्लस में तो यू इनवर्स भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दैट इज आल्सो अ पॉजिटिव रियल नंबर. इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा दी, है ना. तो इसलिए ये आपके इट वाज योर वन, यू नो, बिकॉज दैट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो यू इनवर्स 1 डॉट यू डैश इज इक्वल टू यू इनवर्स. दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि 1 इसकी आइडेंटिटी है, यू डैश इज इक्वल टू यू इनवर्स, तो ये इसका इनवर्स आ जाएगा. ये हमें वैसे भी अंडरस्टूड है कि अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इज द ऑपरेशन तो इनवर्स क्या आता है 1/u. तो आइडेंटिटी यू गॉट 1 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यू गॉट यू इनवर्स, है ना. यानी ये इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है. दिस बिलोंग्स टू आर प्लस. नाउ व्हाट, और क्या प्रॉपर्टी थी भाई, कम्यूटेटिविटी भी होती है इसमें वेक्टर स्पेस के लिए. 3 प्रॉपर्टीज डन, है ना. कम्यूटेटिविटी इज आल्सो देयर, इसको हमने कर दिया था 1 2 एंड एसोसिएटिविटी थी ये. दिस इज 3 आइडेंटिटी, दिस इज 4. देन commutativity is also there. uv, इसको मैं v डॉट u लिख सकता हूँ क्योंकि रियल नंबर है. v प्लस u फॉर ऑल uv इन आर, है ना. अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स, स्केलर प्रोडक्ट. ये 4 प्रॉपर्टीज तो हो गए आपके पास. नाउ अल्फा ऑफ u प्लस v. So alpha u plus v will be how much? Alpha of u plus v. This will be alpha of uv. Yeah. And now this alpha is multiplying in uv. uv belongs to r plus, and alpha is a scalar. So इसमें I can apply this. I can write what? या तो इस तरीके से कर लीजिए. अब alpha dot uv कितना है? u to the power alpha. So it will be how much? uv to the power alpha. है ना? Alpha dot u is u to the power alpha. So uv to the power alpha. अब अगर पावर अल्फा है, कैन आई राइट u अल्फा इंटू v अल्फा, Yes, sir. है ना. ये तो नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है. अगर a b टू द पावर m है तो am bm, ये प्रॉपर्टी में पता है. u अल्फा डॉट v अल्फा. अब u अल्फा इज हाउ मच? अल्फा u एंड दिस इज अल्फा v बाय दिस. ओके, ठीक है. अल्फा u डॉट अल्फा हमें क्या शो करना है? अल्फा u प्लस अल्फा v, ये शो करना है. तो दिस इज अल्फा u डॉट अल्फा v. अब अल्फा u इज अगेन अ वेक्टर क्योंकि अल्फा u बिलोंग्स टू r प्लस, है ना. सो अल्फा u को आई कैन राइट a vector and that alpha v again a vector. इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? डॉट है तो अल्फा u प्लस Plus alpha v. है ना. ये आ जाएगा. तो दिस प्रॉपर्टी, बाय दिस प्रॉपर्टी यू गॉट. सिमिलरली तो ये अल्फा u प्लस b इज इक्वल टू दिस. सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा, है ना. इसमें 2 प्रॉपर्टी होती है 6 में. एक अल्फा u प्लस b और सेकेंड होती है अल्फा प्लस बीटा.
यहाँ पे सम ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर एडिशन अल्फा प्लस बीटा यू। नाउ अल्फा प्लस बीटा यू क्या लिख सकता हूँ मैं, u टू द पावर अल्फा प्लस बीटा, है ना, इट इज अगेन सम स्केलर एंड दिस इज हाउ मच u अल्फा इनटू, U beta. है ना, और u अल्फा क्या है, u अल्फा अगेन अल्फा u Alpha. एंड डॉट दिस इज बीटा u। ये कितना हो गया, अल्फा u प्लस बीटा u। ओके, सिमिलरली सेवेंथ प्रॉपर्टी you have alpha beta u, this should equal to alpha beta u, this should equal to beta alpha u। तो आप एक लेफ्ट हैंड साइड लेके चल सकते हैं, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया अल्फा बीटा यू, ना, इसको आई कैन राइट अल्फा इंटू बीटा यू। क्या, व्हाट इज बीटा यू, यू टू द पावर बीटा, है ना, अल्फा डॉट यू टू द, अब इसे क्या लिख सकता हूँ मैं अगेन, यू टू द पावर बीटा टू द पावर अल्फा, Alpha. अब यू कैन राइट इट इज यू टू द पावर, अब बीटा अल्फा पावर विल बी मल्टीप्लाई आपस में, a टू द पावर m टू द पावर n इज amn, क्योंकि रियल नंबर्स है वी हैव दिस प्रॉपर्टी ऑफ पावर्स। अब बीटा अल्फा को क्या लिख सकते हैं आप, बिकॉज these are the numbers, so this I can write u to the power alpha beta, beta alpha is equal to alpha beta। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सेम यही आ जाएगा अल्फा बीटा यू। अगर ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा, और ऑल्सो अगर यू अल्फा बीटा को मैं ये लिख दूं, व्हाट इज इक्वल टू यू अल्फा टू द पावर बीटा, है ना, इसे ये भी लिख सकते हैं, तो इट विल बी हाउ मच बीटा अल्फा यू। इसके बाद इस स्टेप के बाद इधर चलेंगे तो आपके पास थर्ड स्टेप, थर्ड इक्वालिटी आ जाएगी, यहाँ चलेंगे तो, एंड वन डॉट यू इज आल्सो, वन डॉट यू इज इक्वल टू यू, तो सिंपल है, वन डॉट यू इज हाउ मच, यू टू द पावर वन which is u। So it means this R plus is a vector space. Under this operation, it is forming a vector space. Under this, तो कोई भी ऑपरेशन डिफाइन हो आपका, you have to firstly see whether that is satisfying this closeness with respect to addition, and this alpha u belongs to same set, and then you will see whether it's forming a group। So inverse or identity, these are the important things, है ना, ये कैलकुलेट आपको फाइंड करना है। Sometimes it may not exist in the set। चल, फोर्थ प्रॉब्लम है, which of the following subsets of V4 are vector spaces for coordinate wise addition and scalar multiplication। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसके ऑपरेशन दे दिए आपको, ठीक है। So here you have set of V4, set of all vectors x1, x2, x3, x4 belongs to V4 such that, yeah, first I will write some option, you have to tell whether it's a vector space। मतलब सबसेट से V4 के, जैसे मान लीजिए एक सबसेट उन्होंने दिया हुआ है x4 is 0, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक सेट है x1, x2, x3, x4, है ना,
ये V4 का सबसेट है, लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन ये लगी हुई है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट शुड ऑलवेज 0। ये इसका मतलब ये है x4 0 मींस दिस। तो ये V4 का सबसेट है नहीं, पहले तो ये बताओ सबसेट है ये V4 का, R4 या V4? क्यों भाई, सबसेट क्या होता है? दिस विल बी कंटेन्ड इन V4, है ना? ये आपका V4 के अंदर कंटेन्ड होगा। V4 क्या है? V4 में यू हैव ऑल द एलिमेंट्स, ये सारे फ्री एलिमेंट्स हैं। इन फ्री वेरिएबल्स में यानी कि x1 x2 x3 x4 को मैं कोई भी चॉइस दे सकता हूँ, लेकिन जो एक सबसेट बनाया इन्होंने पार्ट ए में, उसमें बता दिया कि x4 को आप चॉइस नहीं दे रहे, इन्होंने x4 को फिक्स कर दिया, यानी कि x1 x2 x3 आई कैन चूज एनी वैल्यू, लेकिन x4 को इट हैज टू बी 0। अब ये बताइए क्या ये वेक्टर स्पेस होगा? ये सबसेट है V4 का, ये वेक्टर स्पेस होगा क्या? देखो कैसे चेक करना पड़ेगा अब हमें। देखिए यहाँ पर अब ये नहीं कि वी स्टार्ट एंड चेकिंग ऑल द प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज उठा के चेक करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर रियल नंबर्स, है ना? तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है रियल नंबर्स हैं। तो अगर रियल नंबर्स है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मैं सम डिफाइन करूं तो सम डिफाइन करने में क्या ये जो प्रॉपर्टी है फोर्थ कोऑर्डिनेट शुड बी 0, क्या ये हमेशा होल्ड होगा या नहीं होगा? क्योंकि अगर सम हमने डिफाइन किया तो वो सम इस सेट में कब जाएगा? सपोज ये सेट आपका ए है, सपोज इसको मैं ए कह दे रहा हूँ, तो अगर ये ए आपका वेक्टर स्पेस है तो क्या होना चाहिए कि अगर यू वी बिलोंग्स टू ए तो u प्लस बी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, है ना? यस सर। तो u प्लस बी ए में कब बिलोंग करेगा? कि जब फोर्थ कोऑर्डिनेट 0 हो। तो अगर आपने मान लीजिए u वेक्टर लिया x1 x2 x3 x4 इज ऑलवेज 0, तो x4 को मैं 0 ही लिख दे रहा हूँ। v हमने लिया मान लीजिए y1 y2 y3 0। सो व्हाट अबाउट u प्लस v? कंपोनेंट वाइज एडिशन करेंगे, है ना? दे रखा है इसमें ऑपरेशन। तो ये 0, ये तो 0 ही आएगा अगर लास्ट कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि x4 0 है ना, तो ये बिलोंग्स टू Yes. a, यानी कि क्लोजर तो हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं अल्फा यू ले लूं, अल्फा यू क्या आएगा? अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा x3 0, ये भी a में जा रहा है। इट मींस व्हाट के दिस वेक्टर एडिशन इज डिफाइंड, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, है ना? अब अगर बात करें आप तो देखो एसोसिएटिविटी विल बी होल्डिंग नेचुरली, क्योंकि रियल नंबर्स है तो एसोसिएटिविटी तो होल्ड होगी, है ना? u प्लस वी प्लस डब्ल्यू विल इक्वल टू, क्योंकि क्या ये रियल नंबर्स है और V4 ऑलरेडी हमें पता वेक्टर स्पेस है, तो इसका सबसेट ये 0 लगाने से वेक्टर स्पेस होगा। अब बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी बिलोंग करेगी इस ए में? क्या यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? व्हाट इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? 0 0 0 0. 0 0 0 0। ये क्या बिलोंग कर रहा है ए में? नहीं कर रहा, बताइए। Yes. कर रहा है, क्यों? क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट 0 लिया हुआ है, तो बाकी पे रेस्ट्रिक्शन है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी तो बिलोंग करती है, क्यों? यस सर। हाँ, यही अगर आपके पास यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, यही सेट अगर मान लो दिया होता x4 नॉट 0, तो ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती है आपकी, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं मान लो चेंज करके प्रॉब्लम होती नॉट 0, तो क्या होता फिर 0 0 0, ये कुछ आपका नॉट 0 होता, वो ए में बिलोंग ही नहीं करता क्योंकि यहाँ पे तो नॉट 0 है। तो मतलब वो ए में क्या आता, फिर आइडेंटिटी नहीं आती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको गिवन है x4 0, तो और बाकी पे रेस्ट्रिक्शन कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी एलिमेंट्स आई कैन टेक 0 0 0। सो इट मींस व्हाट, आइडेंटिटी बिलोंग्स टू दिस, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट, है ना? और क्या प्रॉपर्टी है? इनवर्स, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसमें, बताइए। इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट भाई, -x1 Yes, sir. -x2 -x3 और 0, दिस आल्सो बिलोंग्स जीरो टू ए।
फॉर ऑल, अगर आपके पास ये बिलोंग्स कर रहा है तो ये भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट। यही दो प्रॉपर्टी आपको चेक करनी होगी, इंपॉर्टेंट। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज होल्ड्स ट्रू। आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, होल्ड ट्रू एज all the numbers are real numbers. Real numbers and elements of V4. तो V4 के एलिमेंट्स हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, नंबर वाली प्रॉपर्टी। बाकी जो प्रॉपर्टीज आपने देखी है सब क्या, ये नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि अल्फा यू प्लस वी, ये सब क्या है, ये सब अर्थमेटिक, ये तो होल्ड होगी होगी। सिर्फ एग्जिस्टेंस और इनवर्स का हमें डर था और आइडेंटिटी का वो मिल गई। समझ में आया ये? अब Yes, sir. बताइए, अब बताइए क्या ये बनाएगा x1 इज इक्वल टू 1, यानी कि अब एक ऐसा सेट है B x1 x2 x3 x4 इज सच दैट x1 इज 1, x1 हमेशा 1 रहेगा, ये सबसेट है V4 का। ये बताइए क्या ये वेक्टर स्पेस है? फर्स्ट एलिमेंट शुड ऑलवेज 1। बताइए नो जल्दी, सर, व्हाई नो? चलिए ठीक है, 1+1 अगर 2 हो जाए तो हाँ तो फिर हो Belong जाएगी, नहीं कर है ना भाई। आप इसको ऐसे ले सकते हैं, मान लो मैं ये ले लूं 1 0 0 0 बिलोंग्स टू वी। एक एग्जाम्पल ना, नो शो करने के लिए, डिस्कार्ड करने के लिए एक एग्जाम्पल बहुत है। 1 0 0 ले लिया, दूसरा ले लिया 1 2 0 0, तो यहाँ पे दोनों V4 को बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 1 है, लेकिन इसका सम U प्लस V 2 हो जाएगा। 2 2 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू V4, है ना। पहली प्रॉपर्टी से और वरना क्या देख सकते थे आप कि आइडेंटिटी नहीं आएगी, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो 0 0 0 0 बिलोंग्स टू V4 नहीं है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। तो बाय सेवरल वेज यू कैन डिस्कार्ड। या अल्फा यू डज नॉट बिलोंग्स टू, अल्फा को मैं 1/2 ले लूंगा, तो अल्फा यू आल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू V4। क्यों? व्हेन अल्फा इज सम फ्रैक्शन, अल्फा इज सम P/Q। So there are different ways where you can discard it. So it is not a vector space. बात समझ में आ गई? जब ये सी पार्ट बताइए। Yes. सी पार्ट में आपके पास सेट है when x2 is greater than 0, x2 is always positive। बताइए, यानी कि ऐसा सेट है x1 x2 x3 x4, लेकिन x2 शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। सपोज ये सी से कहते थे, ये है क्या वेक्टर स्पेस? जल्दी से बताओ। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। है इनवर्स? क्यों इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट? इनवर्स तो एग्जिस्ट कर सकता है, वो भी तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर x2 ग्रेटर देन 0 है मान लो, तो उसका इनवर्स भी आपका 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, वो बिलोंग करता है V4 में। अगर मैं अल्फा नेगेटिव ले लूं, भाई अल्फा यू है आपके पास और अल्फा मैं नेगेटिव ले लूं, तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अल्फा यू क्या होगा? अल्फा x1 अल्फा x2 अल्फा x3 अल्फा x4। अब अल्फा तो आपका बिलोंग्स टू R होता है, तो अगर अल्फा इज सम -2 है मान लीजिए, तो क्या हो जाएगी ये चीज? -2x2। तो थर्ड कंपोनेंट क्या आ रहा है आपका यहाँ पे? क्या कि सेकंड कंपोनेंट शुड ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन अगर मैंने -2 लिया तो ये दिस विल बी व्हाट? नहीं है ना। तो Negative. अल्फा यू डज नॉट बिलोंग्स टू V4 फॉर अल्फा बिलोंग्स टू नेगेटिव R-, है ना। डी बताइए। डी इज अ सेट वेयर x3 स्क्वायर
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी भी नहीं थी देखिए, क्योंकि x2 हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि आइडेंटिटी भी नहीं होगी ना, यू कैन नॉट हैव आइडेंटिटी, इससे हमेशा आपको नॉन जीरो रखना पड़ेगा, तो आइडेंटिटी इज आल्सो नॉट देयर, दिस आल्सो नॉट बिलोंग्स टू सी। सी था ये, V4 नहीं सी, इसे मैंने सी से लिया। तो ये वाला सेट बताइए जल्दी से, ऐसा सेट वेयर थर्ड कोऑर्डिनेट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और जीरो भी हो सकता है, यहाँ इक्वलिटी है ना, यानी कि अगर मैं इसको D से रिप्रेजेंट करूं, तो D इज अ सेट x1 x2 x3 x4 such that थर्ड का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो भी पॉसिबल है ना। सोचिए, तो आपको एक बात तो मालूम है कि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होते ही है, जो ये लिखा है Yes, sir. स्क्वायर, तो ये तो कोई नई बात नहीं है, और जीरो भी है, तो जीरो का मतलब क्या हुआ कि x3 को मैं जीरो ले वेक्टर सकता स्पेस। हूँ, जीरो ले सकता हूँ, है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब कि यहाँ 0 0 0 0 बिलोंग Possibility. टू डी तो करेगा ही करेगा। अगर ये स्ट्रिक्टली होता तो फिर ये चीज फेल हो जाती, लेकिन यहाँ करेगा। बाकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, होल्ड होंगी नहीं भाई। अगर आपके पास टू एलिमेंट्स हैं यस। u v, Yes, sir. तो u होंगे. प्लस v जब आप ऐड करेंगे तो u प्लस v क्या होगा, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4। अब ये बिलोंग्स टू डी जाएगा नहीं, ये डी में कब होगा, जब थर्ड एलिमेंट का स्क्वायर पॉजिटिव हो, तो ये तो रहेगा ही भाई। एक्स Yes, थ्री sir. स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, y3 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उसका सम क्या आएगा, ये भी तो यही आएगा, तो डी में Yes, sir. बिलोंग We करेगा, belong to. आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है। अच्छा, इनवर्स की बात करें तो इनवर्स ही बिलोंग करेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हो उसका इनवर्स ले, इनवर्स आप ये लिखेंगे, मान लीजिए -x1 -x2 -x3 -x4। अब इसका स्क्वायर करोगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी बिलोंग्स टू डी Yes, sir. है ना। तो दिस इज वेक्टर स्पेस, दिस इज वेक्टर स्पेस, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी थी और बाकी हो गई। अच्छा, ई पार्ट देखिए, x1 स्क्वायर लेस देन 0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हमेशा निगेटिव है, यानी कि एक ऐसा सेट लाइक दिस वेयर फर्स्ट स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। देखो, जब स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब वही कि दिस नंबर कैन नॉट बी 0, है ना। जैसे स्ट्रिक्टली आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर x1 0 होता तो उसका स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब x1 कैन नॉट बी 0 तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट वेक्टर आइडेंटिटी स्पेस, नहीं। हमेशा आइडेंटिटी नहीं मिली, है ना। तो हमें एक ऑपरेशन दिखाना है कि इसमें होल्ड नहीं करता, तो अगर x1 नॉट 0 है तो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, तो नॉट अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। इस तरीके से क्विकली आंसर दे सकते हैं आप, कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन है ये सारे। सिमिलरली एफ में यू हैव अ रेस्ट्रिक्शन दैट 2x1 प्लस 3x2 शुड इक्वल टू 0। ये देखिए, मतलब यहाँ पर आपके पास एफ ऐसा सेट है x1 x2 x3 x4 such that sum of first twice x1 plus 3x2, यानी कि पहले एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का सम विद मल्टीप्लाइंग बाय 2 and 3, दिस शुड ऑलवेज 0। तो ये V4 का सबसेट तो है ही, 4 एलिमेंट्स 4 टपल्स है, क्या ये होगा। अब देखो, इसमें ये देखना है कि जब सम आपके पास 0 होगा तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि मैं x1 x2 को 0 ले सकता हूँ, है ना। चॉइस अभी मेरे पास खत्म नहीं हुई है कि नहीं है। और x3 x4 यस। क्या है, ये तो है ही फ्री वेरिएबल, तो इसकी चॉइस तो मेरे पास थी। यहाँ पर हमें देखना है कि सम अगर नॉन जीरो होता तो प्रॉब्लम होती यहाँ पे, लेकिन सम क्या है 0, तो सम 0 में क्या एडवांटेज है कि स्टिल आई कैन टेक x1 0 x2 0, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो 0 + 0 = 0, और x3 x4 दे आर ऑलवेज 0, क्यों। और अगर हम सम की बात करें तो अगर आप u लेंगे, सपोज x1 x2 x3 x4, और इफ आई विल टेक v y1 y2 y3 y4, है ना। तो अगर v भी बिलोंग्स टू
एफ है तो इसका मतलब क्या होगा 2y1 plus 3y2 is equal to 0 and this belongs to f means 2x1 plus 3x2 is equal to 0. तो u plus v में क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, देखते हैं। x4 plus y4, अब क्या करना है, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस थ्राइस ऑफ सेकंड एलिमेंट। बताओ ये क्या आएगा, x वाले टर्म एक साथ ले लेते हैं, 2x1 प्लस 3x2 और y वाले टर्म एक साथ। ये क्या है बताना जरा, दिस वाज 0, दिस इज आल्सो 0, तो 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस बिलोंग्स टू f, है ना। देखो हमने 2 एलिमेंट्स f के लिए, तो अगर u बिलोंग्स टू f था तो दिस विल होल्ड, एंड अगर ये बिलोंग्स टू f था तो दिस विल होल्ड। अब आपने सम किया, अब ये सम f में कब जाएगा, अगर ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस थ्राइस ऑफ सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू 0, ये सेट में आने की रेस्ट्रिक्शन है, ये कांस्टेंट है इसमें ना। तो हमने क्या निकाला, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट प्लस थ्राइस ऑफ सेकंड, इसे सॉल्व कर लिया। तो क्या करा, x1 के टर्म्स अरेंज कर लिए एक जगह, y1 y2 के टर्म्स दूसरे एक साथ, सेपरेट योर x1 x2 टर्म्स y, और ये हमारे पास था ही ऑलरेडी, तो इसका वाला क्या हुआ, बिलोंग कर रहा है f में। और सिमिलरली अल्फा u बिलोंग्स टू f, और बिकॉज सम इज 0 so identity also belongs to f, so all the properties holds, inverse also holds, so this is a vector space। क्योंकि यहीं पे अगर मैं चेंज कर दूं प्रॉब्लम, देखिए लास्ट प्रॉब्लम है ये, x1 प्लस 2/3 x2 माइनस 3x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 1, ऐसा सेट है। यानी कि अगर मैं जी से डिनोट करूं तो जी में ये वो सारे एलिमेंट्स जो इस इक्वेशन को होल्ड करें। ये बताइए क्या ये वेक्टर स्पेस होगा, बताइए, जीरो वेक्टर स्पेस। तो जल्दी से, क्या ये आपको 1 दे देगा अगर सारे 0 हो तो? माई क्वेश्चन इज, क्या 0 0 0 बिलोंग्स टू जी? ये सोचो बस, मैंने बताया ना आइडेंटिटी sir. से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं बहुत जल्दी से। कर रहा है या नहीं? Yes, sir. No sir, यस सर, नो सर? no sir, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा ये वाला। हाँ, क्योंकि इसका सम 1 नहीं आएगा। देखो भाई, 0 0 Yes, 0 sir. 0 का सम नहीं क्या है, करेगा। 0, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू जी। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर राइट हैंड साइड में 0 होगा तो आपका वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास चॉइस रहती है। यहाँ पर जैसी नॉन जीरो टर्म लिखेंगे आप तो ये चीज फेल हो जाएगी, एंड दिस इम्प्लाई यू नो कि वेक्टर स्पेस बनने के लिए इसे ग्रुप बनना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ग्रुप बनने के लिए इट शुड हैव आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी नहीं है ना, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो आपको कोई और ऑपरेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे तो आप एडिशन से भी डिस्कार्ड कर सकते थे, क्यों? देखो ये एलिमेंट ले लिया मैंने, 1 0 0 बिलोंग्स टू जी, 0 1 और नहीं 0 यहाँ पर ये है, तो 0 0 0 और 1 ये ले लो। देखो इसका सम भी 1 है ना, इसका सम भी। लेकिन जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने में क्या आएगा, 1, ये अगर u है ये v है, तो u प्लस v इज हाउ मच, कंपोनेंट वाइज 1 प्लस 0 0 प्लस 0 0 0 1 1 प्लस 1। अब यहाँ पे जब आप रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। ये किसका सम इसमें नहीं आ Yes, रहा sir. है, तो ये भी एक एलिमेंट है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ा। इसमें डायरेक्ट हमने डिस्कार्ड कर दिया, ऐसे भी कर सकते थे आप। ऐसे एलिमेंट ले लिए क्योंकि हमें दिख रहा है कि x1 और x4 के कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 है, तो मैंने 1 0 0 0 लिख दिया, तो ये बिलोंग्स टू दिस हो गया, और 0 0 0 1 ले लिया। दोनों जी में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन सम आपने किया तो यहाँ 1 1 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1,
So in this way, you can find that this is a vector space or not. Is it clear?